يا الله احمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو خمی، اسی میں ہو کمی، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. شروع کرتا ہوں میں اپنے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. ایک مرتبہ سارا مجموعہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، برادران اسلام اور مکتب نورانی مسجد کے تمام طلبہ اور طالبات، میں سب سے پہلے حق جل مجدہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک و مولا نے ہمیں اور آپ کو مختصر وقت کے لیے اس مکتب کے سالانہ اور سمر ویکیشن کے آخری پروگرام میں اللہ پاک نے ہم سب کو جمع فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ حضرات ہمارے شہر کے ایک عظیم مستند عالم دین مولانا نعیم صاحب ندوی سے بھی اور قاری مناف صاحب قاضی سے بہت سی قیمتی باتیں اس وقت آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں اپنے اکابر، اپنے بزرگان دین کے جو قیمتی موتیاں امت کے سامنے رکھی ہیں، دو چار باتیں بھی رکھنے کی ہمت اور کوشش کر رہا ہوں. دوستوں بزرگوں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں بغداد کا نام لیتے ہی ہمیں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں. مگر تاریخ بغداد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. بغداد کے ایک عظیم رہنما، بغداد کے ایک عظیم بادشاہ، وقت کے حاکم نے اعلان کیا کہ میرا شہزادہ جوان ہو چکا ہے، اب اسے نکاح کرنے کا ارادہ ہے. میں اپنے شہزادے کو میں ایسے لڑکی کو نکاح میں لوں گا جو حافظ قرآن ہوگی، جو حافظ قرآن ہوگی. تو اس نے پورے بغداد میں اعلان کرا دیا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جس گھر کے اندر حافظ قرآن ہوگی وہ اپنے گھر میں چراغ جلا دیں. ہم کسی گھر سے جس گھر میں چراغ جلتا ہوگا اس گھر کی لڑکی سے اپنے شہزادے کا ہم نکاح کرا دیں گے. خاموش بیٹھو ابو جہل کے دشمنوں، ہم نے تمہارا اب تک سنا ہے، ہمارا بھی تو کچھ سنو. بادشاہ وقت نے جب اعلان کیا اور رات بغداد سٹی کا معائنہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا کہ دیکھیں اس گھر میں چراغ جل رہا ہے، پھر اس گھر کی لڑکی سے میں اپنے شہزادے کا نکاح کروں. سنو نوجوانوں، تاریخ بغداد میں لکھی ہوئی یہ بات کہ پورے بغداد شہر کے ہر گھر میں چراغ جل رہا تھا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے بغداد کے ہر گھر کی بچی حافظ قرآن تھی. پھر بادشاہ کو یہ فکر ہوئی کہ میں کس گھر کی لڑکی سے حافظہ سے میرے شہزادے کا نکاح کراؤں. اس نے دوسرے دن ایک اعلان اور نکالا. سن رہے بھائی؟ دوسرے دن ایک اعلان اور نکالا. اس زمانے میں
सियाह सित्ता जो हदीस की बड़ी किताबें हैं, उलमा इकराम से मालूम करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप कुछ वक्त निकालकर मदरसा आना चाहिए, मदरसे में आकर पूछना चाहिए कि हजरत सियाह सित्ता जो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, ये जो हदीस की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो तो हमने पढ़ा तो नहीं है, कम से कम उसकी जियारत करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने दावतुल्लाह के कुतुब खाने में अल्हम्दुलिल्लाह उन किताबों को बरकत के तौर पर पढ़ने के लिए और जियारत के लिए भी हमने रखा है। इसीलिए कभी आप वक्त निकाल कर आप उन किताबों को जियारत कीजिए। उलमा हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि मुअत्ता इमाम मालिक के हदीस की एक मुस्तनद किताब है। बादशाह वक्त ने ऐलान निकाला कि बगदाद शहर के हर घर में हाफिज कुरान है। एक शर्त यह है कि जो बच्ची बगदाद शहर की मुअत्ता इमाम मालिक की हाफिजा होगी हम उसका निकाह कराएंगे अपने शहजादे के साथ। किताबों में लिखा है मेरे भाइयों, जब दूसरी रात उसने बादशाह अपने साथियों के साथ निकले हैं, बगदाद के आधे से ज्यादा घरों में चिराग जल रहा था। मुअत्ता इमाम मालिक की हाफिजा, कुरान की हाफिजा। उस वक्त का माहौल कैसा होगा, उस वक्त का बगदाद कैसा होगा, उस वक्त के रहनुमा और बादशाह कैसे होंगे। उसी बगदाद के एक बादशाह का भी जिक्र लिखा है, उनका नाम था बादशाह शुजाउद्दीन किरमानी, बादशाह का नाम। वो मुख्तलिफ बगदाद की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। तलबा आप चले जाओ, खाने का नज़म है, खाला खा लो जाओ। बगदाद की मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते थे। तो नमाज से जब फारिग हुए तो देखा एक नौजवान बड़ी इत्मीनान सुकून के साथ नमाज पढ़ रहा है, बड़ी इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ रहा है। बादशाह वक्त ने अपने साथ रहने वाले साथियों से कहा कि जब इस तालिब इल्म की, इस नौजवान की नमाज जब फारिग हो जाए उसे मेरे दरबार में हाजिर करना। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो बादशाह के जो जिम्मेदार थे, जो गुलाम थे, खादिम थे, उन्होंने कहा कि आपको बादशाह ने याद किया है, आपको बादशाह ने याद किया। वो नौजवान बड़ा परेशान हुआ कि मुझसे क्या गलती हुई, मैं तो अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए आया था, बादशाह वक्त ने मुझे क्यों बुलाया होगा, क्यों बुलाया होगा। इसी फिक्र में वो बादशाह की खिदमत पे पहुंचे। बादशाह बड़े अदब एहतराम के साथ उन्हें करीब किया, सामने बिठाया, कहा बेटा तुम्हारा निकाह हुआ है। ले शर्माते शर्माते कहा कि हजरत मैं तो अभी निकाह नहीं हुआ है। अच्छा निकाह होना चाहते हो? तो उस नौजवान ने कहा हाँ कहूं तो भी मुश्किल, ना कहूं तो भी मुश्किल। उस नौजवान ने कहा हजरत निकाह का इरादा तो है। अच्छा निकाह करना चाहते हो? अच्छा निकाह करना चाहते हो तो मैं अपनी शहजादी को तुम्हारे साथ निकाह में देना चाहता हूं, कबूल करोगे? उस नौजवान की और परेशानी बढ़ गई। हाँ कहूं तो भी मुश्किल, ना कहूं तो भी मुश्किल। बड़ी परेशानी के बाद उस नौजवान ने कहा कि बादशाह हुजूर अगर आप अपनी शहजादी का मुझ तालिब इल्म से निकाह करवाना चाहते हैं तो मैं राजी। निकाह हो गया। अब उस नौजवान जब घर पहुंचा अपनी अम्मी से कहा कि मेरा फला शहजादी से निकाह हो गया। वाले रिश्तेदार बोले अच्छा निकाह हो गया वो भी शहजादी से? अच्छी बात है, हम अपना घर साफ, जो भी छोटा मोटा मकान था घर साफ की, एक दो वक्त के खाने का नज़म था, उसके सब तरतीब लगाए। जब दुल्हन को लेकर पहुंचे तो दोपहर में शर्माते शर्माते थोड़ा सा वक्त गुजरा। जब रात का वक्त आया तो मियाँ बीवी दोनों बैठे रहे और शाम का जो खाना था वो रखा हुआ था। वो जब खाने के लिए बैठे तो शर्माते शर्माते वो भी थोड़ा खाए, वो भी थोड़ा खाए, कुछ बच गया। तो उस नौजवान ने अपने दुल्हन से या शहजादी से कहा देखो ये बचा हुआ खाना निकाल के रखो, कल सुबह हमें काम करना। जब इतना कहना था वो शहजादी जो दुल्हन बनकर आई थी ज़ारो कतार रोने लगी। अब वो नौजवान समझ गया ये मेरी झोपड़ी, ये मेरा खाना, ये मेरा दस्तरखान, ये मेरी सूखी रोटी और ये माहौल, ये सब इसे परेशान कर रहे हैं। इनके वालिद ने तो इनके साथ जुल्म किया। शहजादी मेरी दुल्हन, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, तेरे बाप ने, आपके वालिद मोहतरम ने, बादशाह सलामत ने मेरा निकाह जबरदस्ती कराया है।
मगर दुल्हन की बात सुनिए, उस लड़की का जुमला सुनिए, कहा कि मेरे सर के ताज, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आपका मकान झोपड़ी का है, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे दस्तरखान पे सूखी रोटी और मामूली सालन है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे मैं निकाह हुई, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपने शाम का खाना जो बच गया वो कल की फिक्र आप कर रहे हैं। मेरे वालिद मोहतरम ने तो आपकी बड़ी तारीफी की, बड़े आप नमाजी हैं, बड़े दीनदार हैं, बड़े मुतवक्किल हैं, बड़े अच्छे हैं। आप आज की तो फिक्र कर रहे हैं और कल की भी फिक्र कर रहे हैं। जो मालिक अल्लाह आज खिला रहा है वो क्या कल नहीं खिला सकता? मेरे भाई एक जमाना वो था कि अपने बच्चियों का तरबियत ऐसी होती थी। तो आज मेरे भाइयों, जिस बगदाद शहर की तारीफ किताबों में लिखी हुई है, आज मैं पूरे जिले के अंदर ये कहता फिरता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तालुके में, हमारी बस्ती में 21 हाफिज और 13 उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम कर रहे हैं। अभी कल मैं अन्नीगिरी एक बस्ती गया था, 16 मस्जिदें हैं, 3,500 मस्जिद, 3,500 मकान है माशाअल्लाह उस अन्नीगिरी बस्ती में। सिर्फ 2 हाफिज हैं, सिर्फ 2 हाफिज। अल्लाहु अकबर। आज आप ताज्जुब करेंगे, मैं बैठे बैठे हिसाब किया यहाँ पर, इस वक्त आपके मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह 17 हाफिज और आलिम बैठे हुए हैं। इस वक्त आपकी खिदमत में 17 आलिम बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। दावत के फारिगीन इस वक्त आपके सामने बैठे हुए, हर एक अपने हिसाब से काम कर रहा है। उनमें से नुमाइंदा तौर पर उलमा, 13 उलमा जो ताल्लुम से फारिग है, ताल्लुम से इफ्ता किए, नदवे से फारिग हुए, मज़ाहिर उलूम से फारिग हुए, माशाअल्लाह कितनी बड़ी बात है। तो आज आपकी बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हुफ़ाज़ का एक जम्मे गंभीर मौजूद है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जहां अपने अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने हमारे लिए कोशिशें, मेहनतें, न मालूम किनकी आंसुओं का नतीजा था, कोई ना कोई गर्म आंसू बहाकर चले गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज हमारी बस्तियों में मकतब चल रहे हैं, मदरसा चल रहा है और हमारे इलाके में मकातिब चल रहे हैं, उलमा हुफ़ाज़। मुश्किल से मैं जानता हूँ बचपन में कि एक हाफिज साहब जो यूपी से, बिहार से आते थे, उन्हें देखने के लिए हम पहुंचे थे और उनके लिए पानी पिलाने के लिए मिट्टी बॉडी के पानी लाते थे। वो हाफिज साहब खुद पूछते, क्या पानी मीठा नहीं होता? मीठे बॉडी से पानी लाते हैं आप लोग। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज अल्लाह का करम है कि आपकी बस्ती में इतने उलमा और हुफ़ाज़ काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का करम है। तो मेरे भाइयों, जहां काम हो रहा है तो मकातिब इस्लामिया ये हमारे नबी की घर की मीरास है। मेरे भाई, जिस बस्ती में मकतब और मदरसा होता है, समझो कि वो अल्लाह की रहमतें, बरकतें उस बस्ती में उतरना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने से क्या होगा, 1-2 सूरतें पढ़ाने से क्या होगा, वजू के गुस्ल के फराइज पढ़ाने से क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत करने से क्या होगा, 1-2 घंटे से क्या होगा। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं कि इन्हीं बच्चों की मासूम ज़बानों से जब अल्लाह की बड़ाई और बुजुर्गी बयान की जाती है, आसमान से उतरने वाले अज़ाबात को रोक दिया जाता है। जहाँ कुरान की तालीमात होते हैं, जहाँ उलमा और हुफ़ाज़ होते हैं, तो मेरे भाई आपकी बस्ती माशाअल्लाह एक मेहनत हो रही है। खुसूसी तौर पर हमारी इस बस्ती के पुराना मकतब नूरानी मस्जिद, माशाअल्लाह यहाँ एक मेहनत हो रही है। इसी तरीके से हमारे शहर में मदीना मस्जिद में माशाअल्लाह मकतब की मेहनत हो रही है, किला मस्जिद में मकतब की मेहनत हो रही है, मक्का मस्जिद में मकतब की मेहनत हो रही है, जामिया मस्जिद एरिया में मकतब की मेहनत हो रही है। मगर आप जरूरत है कि मुनज़्ज़म मकतब की जरूरत है, फिक्र के साथ। उसके लिए मेरे भाइयों, हमारे बड़ों ने लिखा है, मकतब में जो मीम है ना, शुरू में सबसे पहले मकतब में मुताल्लिम होना चाहिए, बच्चे हमारे होना चाहिए। दूसरी बात फरमाया कि मकतब का जो मीम है, दूसरा काम मुअल्लिम होना चाहिए। मुअल्लिम तजुर्बेकार, पढ़ा लिखा हुआ मुअल्लिम होना चाहिए। और फरमाया, तीसरी बात फरमाते हैं कि जिम्मेदारों की मुआयनत होना चाहिए, साथ होना चाहिए, तब जाके मकतब माशाअल्लाह चलता है। चौथी बात फरमाते हैं कि वो मकतब मुस्तकिल होना चाहिए। ये 4 बातें जिस मकतब में होंगी वो मकतब मिसाली मकतब है। तो माशाअल्लाह इस वक्त हमारे मुतालिम तो मिल रहे हैं, मगर गिने चुने मुतालिम। देखिए, हमारी इस नूरानी मस्जिद के अतराफ में 150 मकान है। अगर एक घर के 2 बच्चे पकड़ेंगे 300 बच्चे होना चाहिए। कितने बच्चे हैं? बहुत मुश्किल है, 50-60 बच्चे हमारे पास।
تو میرے بھائی ہم مکتب کی ذمہ دار اور نورانی مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے ایک ایک گھر کو جا کر جہاں بچہ ہے بچی ہے اسے مکتب کے لانے کی فکر کریں. میں آپ کو اپنے اکابرین کی ایک بات سناتا ہوں. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی کا بچہ اگر بیمار ہے کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہے اس کے علاج کے لیے ماں باپ دن رات کوشاں رہتے ہیں ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی زندگی کی پونجی لگا کر اپنے بچے کی صحت یابی کی کوشش کرتے ہیں. حضرت نے لکھا ہے اس سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے محلے کے بچے دین کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہو جائے. یہ جو دور یہ جو ماحول چل رہا ہے میرے بھائیو علمی دور ہے. یہ اسکول کالج کانوینٹوں اور کوچنگ اور ٹیوشن کا دور ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے جو اسکول کانوینٹ جانے والے بچوں کو ان کے کتابوں کے بوجھ سے ان کے تھیلیاں ان کے بیگ کی وجہ سے وہ پھولے جا رہے ہیں. وہ کتابیں وہ ان کے بیگ اور اس کے بوجھ کی وجہ سے ان بچوں کے کندھے جھکے جا رہے ہیں اور ان بچوں کے ٹیوشن کی فی اور ڈونیشن کی فی ادا کرنے کے لیے باپ کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے اور بچوں کے ٹیوشن کی تیاری اور ٹفن کی تیاری کے لیے ماں کی نیند اڑی جا رہی ہے. ان بچوں کا ایسا ہوم ورک کیا جا رہا ہے کہ اس کی تیاری اور ترتیب کے اندر بچوں کی مسکراہٹ اڑی جا رہی ہے. مگر اللہ والوں نے آگے لکھا ہے یہ ساری کوششیں محنتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول کالج کانوینٹ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو کر ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا پروفیسر بنے گا وقت کا حاکم بنے گا. میرے بھائیوں اسی امید کے اندر اپنے خواہش ارمانوں کا ایک تاج محل بنا کر رکھتے ہیں مگر جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں ڈگری حاصل کر لیتے ہیں ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے پروفیسر بن جاتا ہے ایک ذمہ دار بن جاتا ہے مگر وہ اپنی خواہش اور اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ آسٹریلیا چلا جاتا ہے. ایک بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اسے بڑے بڑے ڈگریاں اسے دلاتے ہیں اور جب اس کے جوڑ کا کوئی نکاح ہو جاتا ہے وہ بھی اسے لے کر کینیڈا چلے جاتا ہے. اب رہے بات دو ماں باپ ایک وسیع گھر کے اندر اس انتظار میں رہتے ہیں نہ معلوم میرے بچوں کا کب فون آئے گا معلوم نہیں کہ میرے انتقال پر وہ آئیں گے بھی نہیں آئیں گے میں کفن کون پہنائے گا غسل کون پہنائے گا میں غسل کون دلائے گا. میرے بھائی اسی امید کے ساتھ ان کی زندگی کا شیش مال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور میرے بھائیوں وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جن کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا مگر دین کی انہوں نے فکر نہیں کی. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو سب کی فکر کی جسمانی اور ضروریات زندگی تعلیم کی سب سے آپ نے فکر کی مگر میرے بھائی روحانی طور پر اسے سب سکھایا مگر اسے رب نے سکھایا دین نے سکھایا اسے آخرت ایمان کی دولت آپ نے نہیں سکھائی تو اسے آپ نے کچھ بھی نہیں سکھایا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مکاتب اسلامیہ کا ہم ساتھ دینے والے بنے اور خصوصی طور پر سمر ویکیشن میں مدارس میں مکاتب میں ماشاءاللہ سمجھا کر پڑھا کر ان کی تختیوں پر وہ کلام اور وہ دین کی بنیادی باتیں سکھا کر تو بیچتے ہیں. اب ماں باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ خود جیسے مولانا نے بہت سی باتیں بتائے ایسے ہی مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ 4 چیزوں پر اپنے بچوں پر دھیان دیں گے انشاءاللہ. نمبر 1 اپنے بچے کو جھوٹ بولنے پر پکڑیں کہ کبھی بچہ جھوٹ نہ بولے. اس بات کی فکر کریں کہ بچہ کبھی جھوٹ نہ بولے. آپ نے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے وہ بغداد سے جیلان سے بغداد کو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے تھے 40 اشرفے کے تھیلی بغل میں اس نے ماں نے سی رکھی تھی اور جاتے ہوئے بیٹے کو ماں نے کہا تھا کہ عبد القادر جو بھی پریشانی حالات آ جائیں مگر سچ بولنا جھوٹ کبھی نہ بولنا. وہ زمانے میں ڈاکو راستے میں راہگیروں کو مسافروں کو لوٹا کرتے تھے. وہ قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا. اتفاق سے عبد القادر جیلانی کا بھی نمبر آ گیا. ایک ڈاکو نے پکڑا نکال تیرے پاس کیا مال ہے؟ کہا میرے پاس تو 40 اشرفیہ ہے. اس ڈاکو نے کہا کہ مذاق کرتے ہو؟ اس نے اپنے بڑے جو ڈاکو سردار تھا کہا کہ دیکھو یہ بچہ مذاق کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 40 اشرفیہ ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا بیٹا سچ کہو 40 اشرفیہ کوئی معمولی قیمت کی نہیں ہے بہت بڑی رقم ہے. کہاں ہے؟ بولے یہاں ہے. ارے سب کو چھپا چھپا کے اپنا مال بچا بچا کے گزرنے کی فکر کر رہے ہیں تو کیوں دکھا رہا ہے؟ تو کیوں دکھا رہا ہے؟ کہا اس جیلان کے رہنے والے شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر خود میرا پانی بنے. انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ ہمیشہ سچ کہنا.
उस डाकू को इतना असर हुआ, कहा कि एक बच्चा मासूम दीन का इल्म सीखने के लिए बगदाद जा रहा है और अपनी माँ की बात पर ऐसी नसीहत कर रहा है, सब तौबा करके वक्त के वली और वक्त के दीनदार बन गए। तो मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि हम अपने माँ बाप, आज तो ऐसा माहौल है कि जो बच्चा झूठ बोलता है उसे हम ज्यादा तारीफ करते हैं, इसलिए हम बारह कहते हैं हराम को हलाल समझे, गुनाह किए तो कमाल। आज माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि जो बच्चा झूठ बोलता है, चापलूसी करता है, धोखा देकर आता है। और बहुत से बच्चे भी नौजवान कहते रहते हैं हमने चुन्ना लगा दिया, टोपी पहना दिया, बकरा बना दिया, उल्लू और बेवकूफ बना दिया। अरे धोखा देना इस्लाम ने मना है। अगर बच्चा ये काम करके आ रहा है तो आप जरूर उसे पकड़ें। दूसरा काम फरमाया मेरे भाइयों, झूठ ना बोले। दूसरी बात फरमाया चोरी ना करें, चोरी न करें। और तीसरी बात फरमाया कि गाली गलौज न करें। हाँ, ये भी तो बहुत जरूरी है। आज हमारे माशरे के अंदर ऐसे ऐसे गंदे गंदे गालियां ईजाद हो चुकी हैं, खुद माँ बाप और बच्चे। मैं तो आमतौर पर कहता हूँ ये भी एक साजिश है उर्दू स्कूलों को, मदारिस को बदनाम करने की। कुछ लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि उर्दू साल में पढ़ता है कि ऐसी गाली देते। मैंने सुना है कि जो बच्चा फहश और गंदी गाली देता है, लोग कहते हैं कि उर्दू स्कूल में पढ़ता है। देखिए, अल्लाह माफ फरमाए मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे के अंदर माँ बाप और बड़े ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम तालिब इल्म के जमाने में जब मज़ाहिल पहुंचे थे 96 में, 96 में मज़ाहिल पहुंचे थे, हमारे आमतौर पर बागलकोट और बीजापुर जिले के तलबा की एक आदत है, बात बात पर तेरी माँ का कहते हैं। वो बिहार के, बंगाल के, यूपी के फला बच्चे, अरे यार तू कैसा है, हमेशा माँ की गाली देता है। उनको बहुत बुरा लगता था। हम तो बड़े आमतौर पर तेरी माँ का, इसकी माँ का, ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं। तो कहले तुम माँ को गाली देते यार? तो बोले अरे माँ को गाली नहीं दे रहे, हम माँ की तेरी दुआ दे रहे हैं कि माँ का भला हो जाए। ये तो हमने तशरीह की, मगर हमारा एक माहौल बना हुआ है इसकी माँ का। तो हालांकि माँ का जुमला ये इतने बुरी आदत है, मगर आज बच्चे बूढ़े आमतौर पर माँ बाप भी कहते हैं हरामखोर। क्या हराम खा रहा है बच्चा? इस जुमले पर कभी तो गौर तो किया करो। हरामखोर कहते हैं बच्चे को, तो वो आपका खा रहा है, हलाल का खा रहा है, आपका बच्चा है, आपकी तरबियत में है, और उसे आप कह रहे हरामखोर, नस्ले हराम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, आज माँ बाप ही ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि हमारे बच्चों में वो जुमले मैं क्या सुनाऊं जिससे आसमान और जमीन भी हिल जाए। ऐसे ऐसे जुमले इस वक्त हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां कह रहे हैं। लिहाजा गाली गलौज से भी हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। इसलिए ऐसे जुमले सिखाओ और अपने घरों पर, अपने दुकानों पर लिखो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह, हयात अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम। ऐसे जुमले अपने दीवारों पर लिखो। जरूरत है मेरे भाई, वो कम से कम उस पर निगाह पढ़कर अपने बच्चे पढ़ते रहे और हमारी भी निगाह जाते रहे। आज इन चीजों का कोई रिवाज नहीं रहा, जिसकी वजह से ये ऐसे माहौल पैदा होता जा रहा है। गंदी गालें हमारे बच्चों की जुबान पे आ रहे हैं, औरतें और बच्चों के अंदर आ रहे हैं। जिस गली के अंदर गाली गलौज ज्यादा होती है, जिस गली के अंदर गंदगी ज्यादा होती है, लोग कहते हैं मुसलमानों का महला है। ला हौला वला कुव्वता। अरे हम सिया सफेद के मालिक थे, उंगली पकड़ के चलाना जिनको हमने सिखाया था, वो दावा करे रहबरी का। अरे हम सब कुछ थे मगर अपने तारीख को भूल गए। इसीलिए मैंने वो आयत तिलावत की, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम। देखो ना बोलो, उनकी तरह मत हो जाओ जो अपने दीन को, शरीयत को, अहकामात खुदाबंदी को, नबी के पाक सुन्नत और शरीयत को भूलकर जानवर वाली जिंदगी गुजारे। तुम ऐसा ना हो जाना। अगर ऐसा हो जाओगे फिर अल्लाह के नकद अज़ाब आएगा। अपने आप को भूल जाओगे, शरीयत भूल जाओगे, यहाँ तक कि मरना भी भूल जाओगे। एक दिन मरना है ना भाई, सामने मत देखो, पीछे भी देखो। 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, सर के बाल सफेद हो गए, कमरों में, घुटनों में दर्द आ गया। क्या वक्त नहीं आया मुसलमानों को आपकी जागने का? कब तक हम नाफरमानी करते रहेंगे? कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? कब तक नबी की सुन्नत और शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारते रहेंगे? वक्त आ गया नौजवानों, भाइयों, जिम्मेदारों, नियत करो रहमत का, बरकत का, अजमत का, हिदायत का। जहाँ अल्लाह की रहमतें बढ़ती है, जन्नत के दरवाजे खोले जाते, सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, अल्लाहु अकबर, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसा मुबारक महीना आने वाला है। सब मजमा नियत करो, इरादा करो, उस माह मुबारक का इस्तेकबाल आज ही से करेंगे। उसका इस्तेकबाल सबसे पहले गुनाह से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तौबा का मतलब क्या? दोनों गाल को कल्ले से मार लेना, दोनों हाथों को कल्ले से मार लेने का नाम तौबा नहीं। जो गुनाह आज से हो रहा है उसे छोड़ो।
जो हो चुका है उस पर नदामत के आंसू बहाओ और पक्की नियत करो कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। ये 3 काम जो लोग करते हैं वो सच्ची तौबा तौबतुन नसूहा में शामिल होते हैं। लिहाजा आओ सच्ची पक्की हम तौबा करेंगे, उस माह मुबारक हम इस्तेकबाल गुनाहों से पाक साफ होकर करेंगे और इस बात की नियत करें, अपने मालिक को मनवाएं और राजी करें। आज के माहौल, आज का मौसम, ये बदलते हुए आसमान, ये बदलता हुआ माहौल, ये गर्मी सर्दी, कुछ माहौल ऐसे बता रहे हैं कि हमारा मालिक हमसे कुछ रूठा हुआ है। आज के कुछ हालात मुल्क के ऐसे बता रहे हैं कि हमारा अल्लाह हमसे रूठा हुआ है। कुछ हालात, कुछ वाकयात, कुछ परेशानी, मुसीबत, आलाम और हालात इस दुनिया के हमें बता रहे हैं हमारा अल्लाह हमसे राजी नहीं है बल्कि रूठा हुआ है। उसे राजी करने के लिए अल्लाह ने मौसम बहार, रहमत का महीना अल्लाह पाक अता करने वाला है। आओ मुसलमानों, सच्ची पक्की तौबा करो, नियत करो, इंशाअल्लाह हम पूरे महीने के रोजे रखेंगे। तैयार है इंशाअल्लाह? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और नियत करो पूरे महीने के तरावी पढ़ेंगे और पूरा कुरान सुनेंगे, सदका खैरात करेंगे, खुद गुनाह से बचेंगे, दूसरों को गुनाह से बचाएंगे और अपने घरों में मुलाजिम काम कर रहे हैं उनको भी सहूलतें अता कराएंगे। अभी से तरतीब लगाएंगे कि इंशाअल्लाह कि हम नमाज की इस साल के रमजान को अपने जिंदगी का सबसे अच्छा रमजान बनाएं। और मैं जो रिटायर हो चुके हैं या जो 50-60 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, मालूम नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाएगा। कुछ है भाई, सूरज निकलता हुआ कोई देखने का दावा कर सकता है? किसी को कुछ पता नहीं है। मैं तमाम जिम्मेदारों से जो यहाँ बैठे हुए नूरानी मस्जिद में स्टेज पर जितने हाजी अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, जितने जिम्मेदार बैठे हुए हैं, मैं तमाम जिम्मेदारों से, बुजुर्गों से दरखास्त करता हूँ, इस साल नियत करो, मालिक के चौखट पकड़कर आखिरी अशरे में 10 दिन ऐतकाफ बैठने की नियत करो। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई? उसके लिए हमारे बुजुर्ग तैयार है? तैयार है भाई? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। 10 दिन अगर आप मालिक के दरबार पर बैठकर अगर आंसू बहाएंगे, सारे दरवाजे हमने खटखटाए, किसी से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, ना होने वाला है, बस होगा तो मालिक के दरबार से होगा। तमाम बुजुर्गान तीन इस वक्त जो जिम्मेदार बैठे हुए वो नियत करो आखिरी अशरे का एहतिकाफ भी करेंगे। हमारे नौजवान भी नियत करें, कम से कम 3 दिन बैठेंगे, ये भी ना हो सके तो कम से कम 1 दिन तो एहतिकाफ जरूर बैठेंगे। और साथ ही साथ हम आपसे एक आखिरी दरखास्त करते हैं, माशाअल्लाह हमारे शहर में उलेमा है, हुफ़ाज़ है, माशाअल्लाह मेहनत हो रही है, मकतब चल रहे, मदरसा चल रहा है, उलेमा हुफ़ाज़ है, मगर हम दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अतराफ देहातों में जाकर देखें। अपने अतराफ देहातों में यही 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर पे देहातों में जाकर देखो, शिर्क बिदात की नदियां बह रहे हैं। अब तक कई बच्चे कुरान को देखे नहीं है, अब तक नमाज सही नहीं है, औरतों को वुज़ू गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, हम अपने आप को मोहताज बनकर इस दावत व तबलीग का काम, मौलाना सईद अहमद खान साहब ने लिखा है, अगर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने कब्र से उठकर अगर आकर कहें कि ये काम गलत है, अब मत करो, क्या छोड़ोगे? छोड़ोगे? मेरे भाई ये काम मौलाना इलियास का नहीं है, ये काम तो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। इस काम को करना है, इस काम इस रास्ते में रोना है, मानना है, इताअत के साथ, मशवरे के साथ, कुर्बानी के साथ, उसूल के साथ इंशाअल्लाह हम चलते रहेंगे। उसके लिए सब नियत करो इंशाअल्लाह माह मुबारक में एक 3 दिन की जमात बनाकर हम अतराफ देहातों के अंदर इंशाअल्लाह वहाँ नमाज की और रमजान की, एहतिकाफ की, अपने बच्चों की दीनी तरबियत और तालीम की इंशाअल्लाह फिक्र दिलाएंगे। उसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह? 3 दिन के लिए सब तैयार हैं? कोई हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कल को गिरफ्तारी नहीं होगी आपके, कल तो पकड़े नहीं, अपने तरतीब से 3 दिन जाना है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के हाजिरी को कबूल फरमाए। मासूम बच्चों पर माशाअल्लाह हमारे इस मकसद के हुफ़ाज़ उलमा ने, जैसे खुसूसी तौर पर कारी मुनाफ साहब, मौलाना दाऊद साहब, मौलाना महबूब साहब, हाफिज उस्मान साहब ने बड़ी मेहनतें की। इन बच्चों के सीनों में माशाअल्लाह ये बहुत कीमती बातें जमा फरमाए, आपके सामने उन्होंने पेश किया है। जैसे मैंने अर्ज किया कि आप जिम्मेदारी बढ़ गई हमारी जिम्मेदारों की, वो मकसद की फिक्र करें, घर घर जाएं, इस मकसद को कायम और दायम रखें, साथ देते रहें। फिर इंशाअल्लाह हमारी बस्ती के हर मस्जिद में मकसद कायम होगा। तो फिर एक दिन आएगा कि बिड़की की बस्ती नहीं रहेगी, बगदाद की बस्ती रहेगी इंशाअल्लाह। बगदाद की बस्ती कब बनेगी? सब मिलकर इज्तिमाइयत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, नफरत, अदावत, हसद, कीना, कपट, नाबुनूद न हो।
नाम और नमूद ना हो, अल्लाह का डर हो, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मुझे देख रहा है। नाम और नमूद अगर होगा तो सूखी घास को गाड़ी खींच कर आग लगाने से जैसे सूखी घास जल जाती है, वैसे हमारे नामे अमाल खत्म हो जाते हैं। तीसरी बात, सारे जिम्मेदार जितने मौजूद हैं, ये मकसद सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि माशाल्लाह यहाँ के उलमाए कराम नौजवानों के लिए भी तालीम बालिगान की फिक्र कर रहे हैं। आप तमाम हजरात की दीन के सीखने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और चौथी बात, दीन का काम करने वाले, चाहे मदरसे के हो, मस्जिद के हो, मकतब के हो, जो भी काम करने वाला होता है, उनके लिए कुछ मुसीबत की, परेशानी की, आजमाइश की घड़ी आते हैं। कुछ बेवकूफ नाअहल होते हैं जो फितना परवर होते हैं, मसाइल और हालात और परेशानी उम्मत के अंदर पैदा होते रहते हैं, उसे हिल्म और बुर्दबारी के साथ बर्दाश्त करते हुए अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये चार बातें मैंने आपके लिए भी जिक्र किया, चार बातें मैंने अपने वालिदैन के लिए भी जिक्र किया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मकतब की मेहनतों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, हमारी बस्ती के हर मस्जिद में मकतब कायम फरमाए, और इस मकतब के सिलसिले में जिन्होंने जिस एतबार से भी हमारा ताउन किया है, इस मकसद के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल